Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let's get started for the task for the day. Today is the day or the lecture, I would say, where we are solving the first question from the government textbook. So you'll get the actual feeling, okay, सही में जो तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, उसके वर्डिंग्स क्या हो सकते हैं, उसमें किस तरीके के कैलकुलेशंस लगते हैं, ओके, और जितने हमने एडजस्टमेंट्स अभी तक किए हैं, ऑल द डिफरेंट एडजस्टमेंट्स. हाँ, नाउ I may have explained around 15 to 20 adjustments. Obviously एक सम में उतने adjustments कभी नहीं आते हैं. ओके, नॉर्मली एक क्वेश्चन जो मैं अभी हमारी स्क्रीन के पीछे डाल रहा हूँ. ओके, द क्वेश्चन इज bifurcated into two parts. Well, here two parts. The first part is trial balance. You can say around 20 items come in a trial balance. And above what you see is adjustments. Around 5 to 6 adjustments आ जाते हैं. So मिलजुल कर around 26-27 items come in the entire question of final accounts, in which around 5 to 6 generally are adjustments. So yes, you will never get 10-15 adjustments. That's too long. Okay, it is just not possible for you as a student, even for a professor, to finish that problem in the time allocated. खत्म करने के लिए तो question can be done and the answer and the solution can also be prepared, but in the time allocated, that should also be a possibility. So today's question behind, पहले तो इस पे हम हमारी जो शस्त्र किया है, okay, what do I mean by that? Okay, operation. So let us study the entire question behind me, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ लिया, वेरी इंपॉर्टेंटली, सर ये पीछे क्या है, टी ट्रेडिंग, P&L प्रॉफिट एंड लॉस, पी कैप पार्टनर्स कैपिटल, एसेट लाइबिलिटी, लीव वन लाइन, लीव 3 लाइन्स. वेल, दीज आर द मार्किंग्स. आई टोल्ड यू 1-2 लेक्चर्स बैक. अगर आपको याद नहीं होगा, याद दिला देता हूँ, दैट एनी जॉब, कुछ भी काम करो, इवन लर्निंग, you, what are you doing? Okay, learning is a job, एक काम है. There has to be a plan. Which subject, which chapter, objectives, long answers, there has to be a plan. Okay, if there is a plan, then the success of that job, जो काम आप कर रहे हो, उसकी सफलता का possibility, गुंजाइश बढ़ जाता है.
Learning is one job, for me teaching is one job. If my plan is to do the entire syllabus, there has to be a plan. Which month, how many lectures, will I be able to cover up? Plan होना चाहिए, वरना क्या है, teaching can continue, but then if your board examinations come by and I have not finished, it's not a success. A soldier going for war, there has to be a plan. He just can't with his arms and ammunition कि भाई चलो मैं सरहद पे जाता हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल, और गोलीबारी चालू कर देता हूँ. अरे बाबा, आर द एनिमीज एक्चुअली देयर ऑन द ऑपोजिट साइड? इफ दे आर देयर, वेयर आर दे हाइडिंग? Plan. There has to be a plan. Every business, okay, every businessman at the very beginning, every rich person, every world famous person that you have heard has a plan. They have a plan on a daily basis कि आज के दिन में Monday, Tuesday, Wednesday, what's the plan? Okay, हाँ. So similarly, when we do the markings, and all of this will help us do the markings, and later on when I do the adjustments, I will try to go as slow as possible because this is the first sum. Not in every sum, बाकी sum में हमारी गाड़ी थोड़ी fast होगी. Right now, from the following trial balance, which is right above, and adjustments जो नीचे है, given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. That is what is given in the textbook. Okay, there is a possibility कि अगर टेक्स्ट का एडिशन वर्जन नया आता है तो वो जो ईयर एंडिंग है पॉसिबल है, दे मे मेक इट 2020, 2021. ओके, ईयर एंडिंग चेंज होगा लिटिल बिट. ईयर का जो आपको न्यूमरल्स लिखना है 2019 की जगह पे 2020 लिखना पड़ेगा, बट बाकी कंटेंट विल रिमेन द सेम. Okay, and the balance sheet as on that date of Shilpa and Katrina. So just to quickly remind you, this is how your factory should look in the books of Shilpa and Katrina for the year ended 31st March 2019. Obviously ऊपर का इमेज आप मत बनाइए, बट द इमेजेस जस्ट टू टेल यू कि फैक्ट्री दिखता क्या है. देयर इज अ लॉट ऑफ मशीनरी, देयर आर वर्कर्स, देयर आर लॉट ऑफ स्पेयर पार्ट्स. ओके, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है. देन समथिंग सिमिलर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. एंड इन द लास्ट लेक्चर बड़े विस्तार से, ओके, आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू दैट फॉर्मूला जिसका नाम है बानो. ओके, उसके एंड में लिखा है टीबी. टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे है एडीजे, एडजस्टमेंट. सो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस. लेट मी पॉइंट इट आउट सो दैट यू नो एग्जैक्टली कि मैं क्या बोल रहा हूँ. दिस वन, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस. एंड ये सब डब्बा आपको बनाने की जरूरत नहीं. दैट इज जस्ट मी ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर अटेंशन दैट ऑब्वियसली दीज गुड स्टूडेंट्स हु आर अबव, what are they indicating? Mind calculation. दिमाग का जो कैलकुलेशन होता है, any calculation related, interest, commission, okay, discount, all of these are calculation, depreciation, they come in profit and loss account. हाँ, and the last is partners capital account. वहाँ पे शिल्पा कतरीना लिख लेना. okay, Katrina if you want to pronounce it like that. And above balance sheet on 31st March. Okay, let me get started with actually showing you the markings. कि markings हम final accounts में in the chapter of final accounts करते कैसे हैं, क्योंकि आधा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. आप आधी जंग यहीं पे जीत जाओगे. You win the war partly if your markings are correct. So starting the first item, what do we have? Land and building. Land and building क्या है? Asset है. किसने बोला है? किसने बोला नहीं है? You should know that कि that is the reason you see the marking is there. So in your textbook also, आपके पास textbook है ना, you will definitely get a PDF version or soft copy of this question and answer and any connected वर्किंग नोट. ओके, ऑन दी टेलीग्राम ऐप वो तो हो ही जाएगा, बट आपके टेक्स्ट बुक में यू डोंट इंटेंड टू यूज द टेक्स्ट बुक फॉर
2 years 3 years 4 years। ये मजाक मजाक में मैं स्टूडेंट्स को काफ़ी बार बोलता हूँ कि भाई टेक्स्ट बुक में जो मार्क करना है कर लो, ये आने वाले एग्जाम तक तो रखना है। ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद में नहीं नहीं सर मैं तो 2 साल के बाद भी यूज़ करूँगा, नहीं नहीं सर मैं तो 3 साल के बाद भी यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली नहीं, आपको पास आउट होके निकलना है ना, आगे जाना है ना। हाँ, सो लैंड एंड बिल्डिंग का फ़ायदा फ्यूचर में होता है। फ्यूचर मतलब हम मर के चले जाएंगे, लैंड किधर पे जाने वाला नहीं है, वो लैंड में तो हम गाड़े जाते हैं। सो एसेट, द नेक्स्ट वन फर्नीचर, एसेट इट इज़ यूज्ड फॉर many years। नेक्स्ट वन डेटर्स, एसेट क्योंकि कस्टमर है तो मेरा बिजनेस का भविष्य है। अगर कस्टमर ही नहीं है तो बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े कंपनीज बंद हो गए। ओके, क्यों? उनके पास कस्टमर नहीं था। ओके, मार्केट चेंज हो गया, उनको समझ में ही नहीं आया कि भाई क्या हो गया। लाइक अ वेरी वेल नोन कंपनी बाय द नेम ऑफ नोकिया। Nowadays you do get mobile phones, but there was a time जहाँ पे अराउंड 7 to 8 years कंपनी बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? अरे कस्टमर ही नहीं थे, उनको समझा ही नहीं कि एंड्रॉयड क्या था, वो अपने ही पुराने सॉफ्टवेयर से अपने मोबाइल को बना रहे थे। नेक्स्ट स्टॉक, 2 स्टॉक होते हैं, 1 ओपनिंग 1 क्लोजिंग। इसका तारीख पढ़ लो, 1 तारीख, सो इट हैज़ टू बी ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट बैड डेप्ट, वी हैव अ फॉर्मूला बाय द नेम ऑफ BANO, उसका जो B है वो ये है, बैड डेप्ट। सो अगेन डिटेल में इफ यू मिस्ड आउट, आई हैव डन इट इन द प्रीवियस लेक्चर। ऑलवेज लुक एट द टाइटल ऑफ द लेक्चर सो यू कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट लेक्चर आर यू वॉचिंग और मेरे प्रीवियस लेक्चर से मेरा मतलब क्या है। नेक्स्ट, ओके, सो दैट इज PNL। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स पेन पेंसिल ऑफिस में तो यूज़ करते हो ना आप, सो इट विल कम इन PNL। वेजेस, ये किधर का पगार है? ये फैक्ट्री के वर्कर्स का पगार है। नॉर्मली दैट इज़ व्हाट यू थिंक, तो आप ये ट्रेडिंग में लिखोगे। सैलरीज, ये ऑफिस में जो लोग काम करने आते हैं ये उनका पगार है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब क्या है? एक व्हीकल, एक गाड़ी। इनवर्ड का मतलब क्या है? वो हमारे फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। क्यों अंदर आ रहा है? क्योंकि वो हमारा रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है। ओके, जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो हमारे ही सोसाइटी में रहते हैं। वो आप लोगों ने, यू मस्ट हैव हर्ड दैट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, देयर वाज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आता है नॉर्मली। ओके, उसके बाद में देयर वर डिफरेंट डिवाइसेस दैट वर अवेलेबल, बट राइट फॉर many years oxygen cylinders is what helped. Now on that oxygen cylinder there is a plastic part, एक मीटर होता है। ओके, जिससे जो प्रेशर होता है ना उसका पता चलता है। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे एक दोस्त है वो बता रहे थे उनका एक फैक्ट्री है और वो बोल रहे थे कि हम हमारे फैक्ट्री में ये जो प्लास्टिक का प्रेशर गेज होता है हम ये बनाते हैं, पूरा सिलेंडर नहीं बनाते, सिर्फ प्लास्टिक का वो थोड़ा सा जो हिस्सा होता है जो प्रेशर को डिटरमाइन करता है। और वो बोल रहा था हमको तो माल ही नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग प्लास्टिक का वो पार्ट बनाने का माल, हमारी गाड़ियाँ आ नहीं रही है, इसके लिए हमारे प्रोडक्शन बंद पड़े हैं। इतने जॉब्स हैं हमारे पास में, देयर आर मैनी व्हाट यू कॉल स्टेट्स इन इंडिया, देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स जो बोल रहे वी वांट ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बट ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जब तक वो पार्ट फिट नहीं होगा यू कैन मेक एन एंटायर ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, सो दैट इज कैरेज इनवर्ड, जो तुम्हारा रॉ मटेरियल लेकर आता है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर कैरेज इनवर्ड इज बिफोर प्रोडक्शन, कनेक्टेड टू प्रोडक्शन, इट इज ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ड्रॉइंग्स, ये पार्टनर्स से कनेक्टेड, एंड पार्टनर्स से कनेक्टेड दिस वन, पार्टनर्स कैपिटल, P कैप। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट इज द मार्किंग। ओके, हम इस तरह का मार्किंग करते हैं, आपको आपके टेक्स्ट बुक में करना है। नेक्स्ट डिस्काउंट, माइंड का कैलकुलेशन 2%, 5%, 9%, 2.5%, 1%, सो इट इज ऑफिस का काम। प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस गिवन टू शाहरुख,
आई एम गेसिंग वो शाहरुख खान के बारे में ऐसा, या तो उनको वो वर्ड यूज़ करना है और शाहरुख खान को कोई एडवांस की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे उन्होंने टेक्स्ट बुक में लिखा है तो चलो बात कर लेते हैं। तो देयर इज समवन जिसका नाम है शाहरुख, उसको इन लोगों ने, शिल्पा कतरीना ने क्या दिया, एडवांस दिया है। मे भी कुछ काम करवा के लेना है, इसके लिए उन्होंने उनको एडवांस दे दिया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शाहरुख कुछ ना कुछ, ओके, मे बी वो एक I don't mean the actor as such, but maybe this Shahrukh is a painter, maybe he is a carpenter, maybe he is an electrician, maybe he is a plumber, कुछ काम करता है, कुछ काम करता है, या तो कोई बड़ा दूसरा काम करता रहेगा। तो शिल्पा और कतरीना के बिजनेस ने क्या किया, दे हैव गिवन एन एडवांस टू हिम। मतलब क्या है कि ये शाहरुख, दिस पर्सन कॉल्ड एज शाहरुख, कुछ भी करके फ्यूचर में हमारा काम करेगा। He has already been paid the money, okay, and I repeat myself, whenever you pay money in advance it is called as prepaid। उससे क्या हो जाएगा, हमारा काम कुछ भी करके, मतलब if he is an electrician, okay, और अगले मंडे को, एग्जाम्पल टुडे इज मंडे एंड आफ्टर 1 week there will be another Monday, नेक्स्ट मंडे को वी हैव टोल्ड शाहरुख कि शाहरुख किधर जाने का नहीं, हमारे यहाँ पे आके काम करने का, हमारा काम फर्स्ट करने का। इफ ही सेज नहीं सर मेरे को दूसरा कोई कॉल आया, अरे हमने तुमको पैसे पहले दिए हैं, हाउ कैन यू से आई एम गोइंग समवेयर एल्स टू वर्क, वी हैव पेड यू इन एडवांस, तुमने काम किया ही नहीं, हमने तुमको पैसा दे दिया है, तो यू मस्ट कम टू आवर प्लेस, आवर बिजनेस एंड वर्क। व्हेन यू पे एडवांस टू समवन, अपना काम कंफर्म्ड है, अपना काम डिले नहीं होगा, okay, so that is a good thing। you don't have to after 1 week I will call up, will I get an electrician, क्या वो टाइम पे पहुंचेगा, अरे चिंता मत करो, तुमने पैसे पहले ही दे दिए हैं, ओके। उसकी ड्यूटी है बिना कोई कॉल के, ओके, बिना कोई रिमाइंडर के, he has to come and do the job, that is the reason हमने एडवांस में पैसे दे दिए हैं, therefore it is an asset, any advance paid is always an asset, okay। so marking is a कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। रीजन, कैश कोई भी रूप में रहने दो, ओके। कैश अगर अपने हाथ में है, अपने पॉकेट में है, अपने बैंक में है, अपने मोबाइल में है, ओके, इन डिजिटल फॉर्मेट, इट इज गुड ना, यू कैन बाय, ओके। बिल आया यहाँ पर, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टक 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 तुमने कुछ क्लिक कर लिए एंड तुमने बिल भर दिया, ओके। सो आई रिपीट माई सेल्फ, एनी चीज़ आपको अमेज़ॉन पे पसंद आ गई, आपको किसी को, लेट्स से यू आर गोइंग, देयर इज अ बर्थडे ऑफ अ फ्रेंड टुमारो, ओके, एंड यू आर लाइक अरे मैं तो भूल ही गया, अब क्या गिफ्ट लेके आओ, ओके, लॉकडाउन है, चीज़ें बंद है, तो तुम अमेज़ॉन पे चले गए, आपको कुछ पसंद आ गया, 1 day डिलीवरी, ओके, आपने एड्रेस डाल दिया दोस्त का, टक 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 पेमेंट कर दिया, बोला जान बच गई, ओके, हम लोगों ने उसका गिफ्ट उसके घर तक पहुंचा दिया। सो इट इज यूजफुल, काम आता है, एसेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिमाग का कैलकुलेशन, कमीशन दिमाग का कैलकुलेशन, सो यू हैव टू कैलकुलेट, सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, रॉयल्टीज। व्हाट इज रॉयल्टीज? पेमेंट दैट यू डू, ओके, इफ दिस इज अ स्पेक्टिकल, बट अगर ये कोई ब्रांड का स्पेक्टिकल है, okay, so there are many what do you call well known names, okay, जो अलग अलग टाइप के चश्मे बनाते हैं, well not like this, okay, ग्लेज आते हैं, स्पोर्ट्स वेयर रहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ ब्रांडिंग यहाँ पे रहता है, ओके ना। एग्जाम्पल, वो जो बड़ी कंपनी है, वेरी फेमस कंपनी जो ये चश्मा बनाती है, दैट इज इंटरनेशनल कंपनी। आई एम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स, ओके। So I go to that company and I tell that company कि I want to in India manufacture, okay, with your name चश्मा, ताकि आपके नेम से, आपके नाम से ही हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। उन लोग फ्री का नहीं देंगे परमिशन, यू हैव टू पे देम, दे विल से हमारा ब्रांड तुमको यूज करना है, हियर डालना है तुमको, देन यू हैव टू पे अस। आई एम लाइक बराबर है, क्योंकि उनके नाम से तो हमारा चश्मा हमारे नाम से तो बिकने से रहा, because we have not created that name in the market। तो बने बनाए नाम को, ओके, ब्रांड को, ओके, उनके डिजाइन्स को
अगर हमको लेना है पेमेंट करना ज़रूरी है, दैट इज़ रॉयल्टी। ओके, तो रॉयल्टी इज़ पेमेंट बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। सो रॉयल्टी इज़ बिफोर प्रोडक्शन मतलब ट्रेडिंग, परचेस इज ट्रेडिंग, वो तो पहले से ही लिख के रखा है। ऑपोजिट साइड कैपिटल पार्टनर का पैसा पी कैप, बिल पेएबल वादा किया है पे करना पड़ेगा लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इट्स अ लोन, ओवरड्राफ्ट एक लोन होता है, वादा किया है पे करना पड़ेगा लाइबिलिटी। परचेस रिटर्न परचेस से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर वादा किया है पे करना पड़ेगा। दीज ऑल पीपल, ये सब लोग हैं। ओके, बैंक लोन इज बैंक को पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक को पैसा देना है, बिल पेएबल इज एक्चुअली साइंड बाय अ पर्सन। ओके, सो वी हैव टू बी पेइंग द मनी। हाँ, बैंक लोन तो वही लाइबिलिटी, इंटरेस्ट माइंड कैलकुलेशन, सो PNL। RDD explained to you in the last lecture, this is OLD, old RDD। तो in the formula of बानो वो जो OLD का जो लाइन है, ओके, उसके अंदर ये फिट करेगी। दिस इज इन द क्रेडिट बट ये जाता डेबिट में है, इसके लिए ये फॉर्मूला में क्या होता है माइनस। इफ यू मिस्ड आउट, ओके सर क्या बोल रहे हो, RDD का फुल फॉर्म क्या होता है सर, मेरे को नहीं समझा। देन माय डियर, इसके पिछला लेक्चर जहाँ पे मैंने एक पूरा लेक्चर ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग RDD, ओके, और उसका मतलब क्या है, उसका रिश्ता किसके साथ में है, विच इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, आई हैव डेडिकेटेड दैट फुल लेक्चर, आप जाके वहाँ पे आराम से देख लेना। हाँ, सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड द लास्ट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट 1। ओके, मार्किंग का। आई होप ना आप चाय नाश्ता लेके बैठ जाओ, क्योंकि दिस लेक्चर विल बी अ लिटिल बिट लेंदी। ओके, that's what I can tell you in advance. Marking of the trial balance is done, all of these. Now we start with star markings. Okay, and what do I mean by star markings? Okay, let me clarify that very quickly. So मेरे पीछे है leave 1 line, leave 3 lines. Okay, ये L के जगह पे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मैं वहाँ पे एक्चुअली आपको स्टार डाल के दे दूंगा। ओके, कि भाई L का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पे था ओके अ लाइन, बट देन हाउ मेनी लाइन्स, शुड आई लीव 1 line, शुड आई लीव 3 lines? वेल लेट्स सी क्या करना है हम लोगों को। सो राइट नाउ इफ आई गो टू एडजस्टमेंट्स अबाउट द फर्स्ट एडजस्टमेंट, the stock in hand was valued at 58,000 on 31st March 2019. इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एंड द गुड थिंग क्या कि इसके लिए कोई हमको स्टार मार्किंग करने का जरूरत नहीं है। यूल अंडरस्टैंड स्टार मार्किंग का मेरा मतलब क्या है, कितने स्टार्स आएंगे, उसके लिए कितने लाइन हमको खाली रखने हैं। पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। What do you mean by outstanding expenses? जो वादा किया है वो पे करना पड़ेगा। You have promised to pay royalties and you have promised to pay wages. कब पे करोगे? मे बी कल, परसों, एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, एक महीने बाद। ओके, जब भी पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा आप पेमेंट कर दोगे। सो आई रिपीट माई सेल्फ, तो मार्क किसको करे? अभी कहा रॉयल्टी, रॉयल्टी को मार्क करना पड़ेगा। सो आई क्विकली विल शो यू दैट। राइट एट द बॉटम आप नोटिस करते हो 1 स्टार। ओके, एंड सिमिलरली वेजेस को 1 स्टार। सो आई रिपीट, व्हेन देयर इज 1 स्टार यू लीव 1 line, where you write रॉयल्टी एक लाइन खाली रखना, where you write wages, ओके, एक लाइन वहां पे खाली रखना। आई होप दैट इज understood by you. Okay, next point number 3, salaries paid in advance to staff 2000. What does that mean? सैलरी को आपने शाहरुख को देखो एडवांस दिया, दैट इज प्रीपेड। सिमिलरली सैलरी आपने किसी को जो आपकी कंपनी में काम करता है, ओके, उसको उसका सैलरी एडवांस में दे दिया, तो वो आके काम करेगा बिकॉज आपने उसका पैसा पेमेंट पहले ही करके रख दिया है। सो वी कॉल इट प्रीपेड एंड वी ट्रीट इट लाइक प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस। क्या करेंगे? देयर इज सैलरी, यहाँ पे उसको एक स्टार मार्किंग करेंगे। सो
I hope you can see that wherever there is 1 star you have to leave 1 line. अगर वो 2 star हो जाएंगे you have to leave 3 lines. अब तक तो 2 star नहीं हुआ, 2 star नहीं हुआ. 1 star 1 line and 2 star 3 lines. Okay. Moving on. Point number 4. Create a provision for bad debts. 1000. Okay. Bad debt कौन कराता है? डेटर कराता है. डेटर जब मेरा पैसा अपनी जेब में डाल के भाग जाता है एंड देन मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट. सो आई विल मार्क डेटर, जो जिम्मेदार है, द वन रिस्पॉन्सिबल टू डू बैड डेब्ट्स, टू क्रिएट बैड डेब्ट्स. ओके, सो डेटर किधर गया? आई होप यू कैन सी दैट राइट अबाउट 1 स्टार. तो डेटर के नीचे 1 लाइन, बट होल्ड ऑन, व्हाई? एंड reserve for doubtful debt at 3% on sundry debtor. So there is RDD. Again, if you ask me, so क्या चल रहा है? What is reserve for doubtful debt? Okay, उसका short form कहाँ से मिल गया आपको? How is this connected to debtors? Again, शायद हाथ जोड़कर मेरी विनती, a request on my part, please watch the previous lecture. It has been completely dedicated to only explain to you what is additional bad debt, what is new RDD and how do you calculate this. This new RDD above me is again connected to debtor. Therefore, I have to go to debtor. आपको आपके टेक्स्ट बुक में जाना है. 2 स्टार. ओके 2 स्टार मतलब अभी 3 लाइन हमको रखना पड़ेगा. सो 1 स्टार वॉज 1 लाइन, 2 स्टार इज 3 लाइन. व्हेनेवर इट इज एक और स्टार आता है ना, तो एडिशनल आपको 2 लाइन इंक्रीज करने पड़ते हैं. सो 1 स्टार आया 1 लाइन, 2 स्टार आया 3 लाइन. सो डेटर में वी विल लीव 3 लाइन्स. एंड लास्टली पॉइंट नंबर 5, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग. दैट इज अ वेरी सिंपल एंड कॉमन एडजस्टमेंट. तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग 1 स्टार करेंगे. ओके फाइन, राइट अबाउट. एंड फर्नीचर, percentage of depreciation is different but also for furniture. So you do notice many items are with 1 star, that would mean leave 1 line, and many items are with what do you call 2 stars. Well, not many items, सिर्फ dater is with 2 star. I will leave 3 lines. Okay, so next time ये थोड़ा LLL seems a little bit confusing. L normally means liability. I will just put up 1 star here, so accordingly it will be clarified, and 3 lines के लिए I will put up 2 stars here. The very first item we have is land and building. 37,800 asset है, क्यों है, कैसे है, all of that has been already described to you. अब गाड़ी थोड़ी फास्ट जाएगी. So right above me I have land and building. Inner column I'll leave 1 line. 37,800. ऐसा क्यों हुआ कि मैंने एक लाइन खाली रखा? क्योंकि 1 स्टार है, 1 स्टार का मतलब है लीव 1 लाइन. अगर 2 स्टार आते हैं उसका मतलब होता है लीव 3 लाइन्स. फर्नीचर 17 to 50. एसेट साइड पे क्यों है, कैसे है, कितने लाइन्स, ऑलरेडी हैज़ बीन discussed, and there's a reason we spend such a lot of time doing the planning, that is the marking. Next, sundry debtors 2 stars 3 lines, 2 stars 3 lines. Here goes sundry debtors 40,000, उसके नीचे 1 2 3 1 2 3. Next, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 तारीख का स्टॉक है तो एकदम ऊपर आपको 65,000 आएगा. 65,000. नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स डिस्कस्ड लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर. इन द फॉर्मूला ऑफ बैड डेब्ट, ट्रायल बैलेंस में वी विल राइट 400. ओके, दिमाग यूज करो. नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में लिखना है क्योंकि ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है. सो राइट अबाउ इन द फर्स्ट लाइन, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. देन कम्स वेजेस, फैक्ट्री वालों का पगार 1 स्टार 1 लाइन. 2 वेजेस, इनर कॉलम, लीव 1 लाइन. नेक्स्ट, सैलरी, ऑफिस वालों का पगार
उसमें भी लीव वन लाइन बिकॉज देर इज वन स्टार मतलब देर इज वन गड़बड़. 5,000. कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने का जो गाड़ी होता है उसको कहते हैं कैरेज और वो इनवर्ड है. सो आउटर कॉलम देर इज नो एडजस्टमेंट. 4,000 आउटर कॉलम देर इज नो एडजस्टमेंट. सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सब्ट्रैक्ट होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन द डेबिट बट वी आर राइटिंग इन द क्रेडिट, देयरफॉर इसको माइनस करते हैं. सो अबाउ इट इज सब्ट्रैक्ट 2,000. प्लीज नोटिस दैट, आपका नज़र और ध्यान वहाँ पे होना चाहिए. नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स. पार्टनर्स जब भी बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करते हैं, पैसा हो, प्रोडक्ट हो, ओके, कुछ भी वो लेके जाते हैं घर के लिए, घर वालों के लिए, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं. फर्स्ट लाइन में आएगा पार्टनर्स के अकाउंट में 2 ड्राइंग्स, 2,000, 3,000. सम स्टूडेंट्स में से बट सर टेक्स्ट बुक में तो ये अकाउंट है ही नहीं. नो प्रॉब्लम्स, ओके. टेक्स्ट बुक में दिस थिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड ऑन द लाइबिलिटी साइड, बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जो मेरी सोच है पर्सनल ओपिनियन में, अगर इसको अकाउंट में करे तो बेहतर है. रीज़न, आफ्टर अ फ्यू years, 1-2 years, you do the same chapter, okay, with a little bit more complications at a higher level in your college life, okay. वहाँ पे, okay, you require partners capital account. So it is a good thing अभी ही सीख लो, okay, और अभी वैसे भी it makes the presentation and the writing a little simpler, okay. मार्क्स में तो कोई फर्क नहीं होगा, you will get the same amount of marks. नेक्स्ट, डिस्काउंट, दिमाग का काम. तो ऑफिस में तो ये जो लोग बंदे हमारे बैठे हैं आज, टू डिस्काउंट, वो डिस्काउंट अलाउड है. कीप इन माइंड, वो डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट का डिस्काउंट. राइट नाउ तो वी आर ऑन द डेबिट साइड. एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस आप किसी को भी दे दो, सलमान को दे दो, शाहरुख को दे दो, ओके. एडवांस इज ऑलवेज एन एसेट. सो जस्ट बिहाइंड मी, रिमेंबर डेटर्स के नीचे 3 लाइन्स, ये आउटसाइड 10,000. नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड हो, कैश इन एयर हो, कैश इन पॉकेट हो, इट्स ऑलवेज गुड. इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस. जब जेब में पैसा रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है. बड़े बड़े होटल में जाके आपको अगर कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, हिचकिचाओगे नहीं, बिकॉज यू हैव द मनी. हाँ, बाकी यू शुड स्पेंड सोच के, ऐसा ही नहीं कि पैसा है तो खर्चा करो, नो, यू शुड स्पेंड सोच के. 8,000 या कैश एट बैंक. नेक्स्ट, इंटरेस्ट कमीशन, दोनों साथ में क्यों कहा, बिकॉज बोथ आर माइंड कैलकुलेशन. डेबिट में है तो डेबिट में जाएगी. सो माइंड, दैट इज द रीजन आई पुट दिस इमेज अबाउट, दिमाग का काम. So to interest 1,000, to commission debit में है तो there is no need to think about it. Sir, where do I write? Debit है तो debit में लिखो 2,000. Next, royalties. This is what you pay. If you don't, then you will not get permission, okay, to use, to manufacture a particular product. So ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. ये राजा से, महाराजा से, महारानी से कोई कनेक्शन नहीं रखता, रॉयल फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखता. 2,000. एंड द लास्ट, परचेसेस, ऑलरेडी देयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट अबाउ. सो डेबिट लिस्ट हमारा खत्म हुआ, एटलीस्ट मेरा तो खत्म हो गया. माई पोस्टिंग्स वर अ लॉट फास्टर, बट देन आई डू रिक्वायर not me going to your speed level, no, you coming to my speed level, that would mean improvement. अगर मैं आपके स्पीड लेवल पे आ जाऊँ, that is not an improvement, and एग्जाम में वो काम नहीं आएगा. You come to my speed level, that is the reason the format, that is the reason the formula, that is the reason the trading account for the year ended, the profit and loss account for the year ended. क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसमें कुछ लोग अभी तक लिख रहे हैं, वो सब तैयार होना चाहिए. दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान. ओके, आई होप दैट द ट्रायल बैलेंस, ओके, मतलब ये खत्म हो गया. अब क्या करना है हम लोगों को, देखो डेबिट खत्म हो गया, पूरा भी नहीं खत्म हो गया, क्रेडिट अब तक बाकी है. चलो क्रेडिट स्टार्ट करते हैं. कैपिटल,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से लिखा है 45,000। नेक्स्ट बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों वादा किया है, हमने वादा किया है और हमको भरना पड़ेगा, वी हैव टू पे इट इन फ्यूचर। लाइबिलिटी साइड माय सजेशन, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 लाइन्स तो ब्लैंक रखना, एंड देन राइट बिल पेएबल एंड देन राइट बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इफ समबडी इज थिंकिंग एंड आस्किंग सर ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओके, बिजनेसमैन लोगों को, ओनली बिजनेसमैन, सबको नहीं, ओके, एक स्पेशल परमिशन मिलता है उनको, एक स्पेशल फीचर मिलता है उनके अकाउंट में, जैसे मोबाइल्स में फीचर्स होते हैं ना, वैसे ही, ओके, उनको एक फीचर मिलता है। इफ दे हैव गॉट 5,000 इन द बैंक, दे कैन रिमूव, ओके, लेट्स से मोर देन दैट 7,000 8,000, तो उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है बैंक के अंदर, जो नॉर्मली आपके पापा मम्मा के अकाउंट में नहीं होगा। बिजनेसमैन के बैंक के अकाउंट में 5,000 में से 8,000 निकलेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। ओके, वो एक लोन होता है, बैंक का लोन। हाँ, सो वो बिजनेस बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। नेक्स्ट हाँ इज परचेस रिटर्न, तो फ्रॉम द परचेस यू माइनस, इनफैक्ट माइनस करके आप बाहर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 48,520। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक लोन, ये दोनों आई हैव टू क्लियर, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी जिम्मेदारी, सो दे आर लाइबिलिटीज। सो क्रेडिटर पहले आ गया, बाद में बैंक लोन। सो ऑल ऑफ दिस, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर बैंक लोन, व्हाट इज दिस, पेएबल, एवरीबडी इज अ पेएबल, सबके आगे पेएबल लिखा नहीं है, बट वादा किया है, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज P&L, डेबिट विल बी रिटन इन द डेबिट साइड, क्रेडिट अबाउ मी ऑन द क्रेडिट साइड। फर्स्ट लाइन नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, सो वी शुड लीव इट ब्लैंक नॉर्मली, इफ यू डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट बाद में लिख देना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, RDD, वी हैव लर्नड दैट दिस इज ओल्ड RDD, तो इन द फॉर्मूला ऑफ भानो, ओल्ड RDD में -1,000, ओके, दे -1,000। एंड लास्टली सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, and please subtract and write it outside, 1,18,000। right now I can definitely confidently tell you कि हमारा 50% काम हो गया ट्रायल। now we start with adjustments, I'll try to go as slow as possible because this is the first problem where we are doing adjustments officially from the textbook। पहला, the stock in hand was, in hand मतलब अपने पास है, अपने हाथों में, मैं आई कैन पिक इट अप, मैं मेरे हाथों में उसे उठा सकता हूँ, मेरे गोदाम में भी पड़ा हुआ है। हाँ, वॉज वैल्यूड एट 58,000, 31st मार्च, वी कॉल इट क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पे लिखे, कुछ भी कर ले 2 बार लिख, एडजस्टमेंट कुछ भी कर ले 2 बार लिख, दैट इज वॉट यू टेल योर माइंड, दिमाग को बोल के रख, 2 बार तो लिखना ही है। ओके, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेगी, बिकॉज स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, स्टॉक का, सामान, ओके, गुड्स का। एक तो यहाँ पे लिखा है, तो यू विल नोटिस, जस्ट टू क्लियर द एरिया, so that's the specific place where you write closing stock. How much is it in this particular question? 58,000. so just highlighting it for you to tell you that this is where you write here 58,000 and हो गया, नहीं हो नहीं गया, एक बार हो गया। ओके, ये हमेशा डबल रोल में रहता है, हमेशा डबल रोल में, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट, अदरवाइज ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी, अधूरी ही रहने वाली है। ओके, ये 58,000 मैं कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा सोचो, ये जो स्टॉक है ये क्या है,
आपके दुकान के अंदर का, आपके घर के अंदर का बचा हुआ सामान, आपके किचन के अंदर का बचा हुआ सामान, क्या करूंगा उसको? अरे क्या करोगे, रखोगे ना, आटा, चावल, दाल, मसाले आप रखो। रख के क्या करूंगा? कुछ मत, कल खाना बनाने में, परसों खाना बनाने में, तरसों खाना बनाने में, फ्यूचर में व्हेन यू विल कुक समथिंग, कुक करोगे ना, हवा पे थोड़ी जिंदा रहोगे। हाँ, सो आई रिपीट, ये माल आपको काम आएगा, डेफिनेटली आपको काम आएगा। जैसे घर पे किचन में बचा हुआ सामान काम आता है, उसी तरह ओके मेनी अ टाइम्स रात को अगर कोई करी बच जाती है तो मम्मा रख देगी। क्यों? मम्मी बोलेगी कल का नाश्ता ना इसी से करना है मेरे को। ओके हाँ, तो तुमको कल का नाश्ता उसी में से मिलने वाला है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, वट एवर स्टॉक बिजनेस में बच जाता है, गोदाउन में बच जाता है, द बिजनेसमैन कीप्स इट, बोलता है कल मैं इसको बेचूंगा, कल इसी से मेरा कमाई हो जाएगी, मेरे को कुछ नया ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है। सो फ्यूचर में ये काम आता है, मतलब इट इज एन एसेट। सो अगेन लेट मी स्विच and clear the area for you. So I'm just highlighting where am I going to write it, which I hope you understand. Closing stock 58,000, वो 58,000 हो, 5,80,000 हो, 58 lakhs हो या 5 crore हो, any value of stock, it is always an asset. Okay, let me come back. This was adjustment number 1 for closing stock, 2 effects. अभी adjustment number 2 करते हैं। सो आइए पढ़ते हैं क्या है एडजस्टमेंट नंबर 2। द फर्स्ट वर्ड इज आउटस्टैंडिंग एंड देन सेकेंड वर्ड एक्सपेंसेस। तो ऊपर व्हाट डज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन? मैंने ये अब तक तो काफ़ी बार बोल दिया है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। अच्छा, कर दिया तो पेड, नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग। ओके आपने वादा किया है। ओके आप दुकान में गए, आपने चचा जी से, ओके अज्यूमिंग देयर इज अ चचा इन दी शॉप, ओके दुकानदार जो थे, आपने उनसे कहा अंकल, ओके काका, चाचा, जो आपको बोलना है, भतीजा, कि मुझे ये सामान दे दो, बट क्या है ना, मैं बटवा लाना भूल गया। ओके मोबाइल भी नहीं है मेरे पास जी पे, फोन पे करने के लिए। ओके तो मैं घर जाता हूँ, फिर मैं वहां से पे कर दूंगा, या मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा अंकल तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वादा किया है, पे करना पड़ेगा। आपने क्या क्या वादा किया है? ऊपर देखो, आपने रॉयल्टी का वादा किया है और आपने वेजेस का वादा किया है। तो देखो भाई, पे तो करना पड़ेगा, बिकॉज आपने सामान तो ले लिया। तो आई रिपीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन आज का खर्चा। आज का खर्चा है तो आज के अकाउंट्स में आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए प्लस करना पड़ेगा। सो पहले हम लोग रॉयल्टीज को प्लस करेंगे और उसके बाद में हम लोग वेजेस को प्लस करेंगे। ओके तो आई रिपीट, रॉयल्टीज में 1500, वेजेस में 800। ओके दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। लेट मी शो यू। सो आई कैन सी रॉयल्टीज। इन रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग, वादा जो किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। सो प्लस यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो विच आई हैव शोन प्रीवियसली, O/S। ओके आई हैव स्पेस तो मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, आपके पास नहीं स्पेस होगा तो नो प्रॉब्लम, राइट द शॉर्ट फॉर्म, चलेगा। हाउ मच? 1500 टोटल, 3,500। दिस इज फॉर व्हाट? रॉयल्टी। बट एट द सेम टाइम wages had the same adjustment, तो we treat it in the same manner। अलग से काय को करना है? so wages में भी प्लस कर लेते हैं। wages का जो वादा हमने किया है, outstanding wages 800, टोटल 3,800। अगेन कहानी समाप्त? बिल्कुल नहीं। यू हैव रिटन रॉयल्टी का आउटस्टैंडिंग एक बार, 2 बार बाकी है। ओके ऐसे बोलूंगा मैं, 2 बार बाकी है। यू हैव रिटन वेजेस एक बार, 2 बार बाकी है। कहां पे लिखो? देखो आपने जो लिखा ना वो डेबिट है, ऊपर आप देख लो, ये आई जस्ट पॉइंटेड आउट टू यू, राइट अबाउट डेबिट। दैट मीन्स क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना। ओके अकाउंट्स में एवरीथिंग जोड़ी में होती है। ओके जोड़ी में, सिंगुलर हमेशा होता नहीं है, इट्स ऑलवेज जोड़ी, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। हाँ तो where do I write it for the second time? You think about it.
दिस इज प्रोमिस टू बी पेड। आपको चचा मामा काका जो भी है ना दुकान वाले को, उसको तो पे करना ही है ना। हाँ, तो प्रोमिस टू बी पेड, पेएबल, पेएबल। तो लाइबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा, 1/1 ऑन द लाइबिलिटी साइड वी राइट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक दिस। हम जस्ट हाईलाइटिंग सो यू नो एग्जैक्टली स्क्रीन पे ये कहाँ पे आने वाला है। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1500, गलती से टोटल मत लिख देना, हाँ गलती से टोटल मत लिख देना, जो आउटस्टैंडिंग है वही। एंड देन वेजेस, कितने भी आउटस्टैंडिंग रहने दे, दे आर प्रोमिस टू बी पेड, एक्सपेंसेस प्रोमिस टू बी पेड 800। सो आउटस्टैंडिंग की कहानी यहाँ पे समाप्त, एडजस्टमेंट 2 इज ओवर। लेट्स स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट नंबर 3। क्या कहता है, सैलरीज। ऑफिस में हम लोग सैलरीज देते, पेड इन एडवांस टू स्टाफ, ऑफिस स्टाफ। सो जस्ट अबाउ मी हियर 2000. What to do? See, firstly I understand this is called as prepaid. When you pay, when let's say ऑफिस में कोई आता है और वो कहता है कि सर घर पे थोड़ी इमरजेंसी है, ओके, आई रिक्वायर माई नेक्स्ट मंथ्स सैलरी, नेक्स्ट 2 months सैलरी इन एडवांस सो दैट I can take care of what is happening at my house, okay? And if you know the person, वो genuine है, okay? वो आपके यहाँ पे 10, 5, 1, 2, 5, 6 साल से काम कर रहा है, you want to help him, तो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट 2 month का सैलरी ले लो, एडवांस, सैलरी इन एडवांस, ओके। उससे क्या होता है, नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 months यू डोंट हैव टू पे हिम, बट वो काम पूरा करेगा। वो काम क्यों पूरा करेगा, क्योंकि उसका पगार हमने उसको पहले ही दे दिया है। वो टाइम पे आएगा काम पे, वो अपना पूरा काम करके जाएगा। शिकायत का मौका, कंप्लेन का वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। हाँ, सैलरी पेड इन एडवांस फ्यूचर का सैलरी है, ओके। देयरफॉर वो आज से, ये जो अकाउंट्स है, ये मेरे पीछे जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है, दे आर ऑल टुडेज अकाउंट्स, ओके। यू हैव टू माइनस इट, आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है और प्रीपेड को माइनस। फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हेन दे से पेड इन एडवांस, दैट मीन्स प्रीपेड। सो गो टू सैलरी, मेरे पीछे है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो इट इज ईजियर फॉर यू टू सी, ताकि आपकी भी दिमाग की बत्ती चली रहे। हाँ, माइनस करो, तो ये माइनस हो गया। यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म P/P, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव स्पेस तो आई एम राइटिंग इट आराम से। 2000, आउटर कॉलम 3000, दिस इज अगेन, खुश मत हो जाना, 2 इफेक्ट आपको देने हैं। दैट वॉज फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, सोच लो। अगर आपका, आई गिव दिस एग्जाम्पल सो मेनी टाइम्स, ओके, इफ यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन एंड आपने एक पूरे साल का इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट वाले को पे कर दिया, यू डोंट हैव टू एट द एंड ऑफ द मंथ रिमेंबर, अरे टुमारो इज द लास्ट डे, इंटरनेट विल गेट cancelled. Then what if I've got some urgent work, what if at that time some urgent message is supposed to come, I've got to urgently call someone, then should I worry about recharge? No, you don't have to worry. For 1 year तुमको डेटा भरपूर मिलेगा, अनलिमिटेड पैकेज रहेगा तो अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। यू विल ऑलवेज बी ऑनलाइन, यू विल नेवर बी ऑफलाइन। हाँ, तो तुम्हारा गाड़ी ऑनलाइन गाड़ी चलता जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड, यू गेट अ बेनिफिट, फायदा मिलता है आपको। सो सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड ठीक मेरे पीछे आने वाला है, एक बार मैं स्क्रीन से हट जाऊं। हाँ, तो आ गया, ओके, उसका जगह आ गया, उसका सीट रिजर्व था। यहाँ पे कंजूसी मत करना, बिकॉज द बैलेंस शीट इज बिग ना, बड़ा होता है। 2000, सो आउटस्टैंडिंग, ओके, खर्चों में, एक्सपेंसेस में गड़बड़ होता ही है। कभी कभी तू खर्चा भूल जाता है, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। कभी कभी तू खर्चा एडवांस में देता है, उसको प्रीपेड कहते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज व्हाट आई डेडिकेटेड माय लास्ट लेक्चर फॉर, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। दे यूज द वर्ड बैड डेप्ट। तो क्या करेंगे, वेल बैड डेप्ट किसने कराया, 1000 का, डेटर ने कराया। क्योंकि इफ आई टेल यू, ओके, कि डू यू नो बैड डेप्ट किसने कराया, इफ आई टेल यू कि डू यू नो वो जो ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वो भाग गया, ऊपर फर्नीचर है ना, वो भाग गया, देन यू विल डेफिनेटली टेल मी कि
स्टीवन सर का ये थोड़ा ढीला हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग कैसे भागेगा? ओके, फर्नीचर किधर भागने वाला है? कार्टून में होता रहेगा वो, बट इन नॉर्मल लाइफ थोड़ी होता है। कौन भाग जाता है? डेटा। तो आई रिपीट, ये भागने का जो फीचर होता है ना, सुपर फीचर, वो डेटर में ही होता है। ओके, सो व्हेन अ डेटर, आई हैव गॉट मेनी डेटर्स, कस्टमर्स, ग्राहक, बट नॉट एवरी ग्राहक इज परफेक्ट। कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हम लोग, हमारे बुक्स में से उसको, उसका नाम माइनस कर लेते हैं, माइनस। ओके, चुन्नू मुन्नू कुन्नू माइनस। तो अबाउट मी, एडिशनल बैड डेट, या सम प्रोफेसर्स कॉल इट फर्दर बैड डेट। कितना? 1000। तो देखो मेरे कस्टमर्स जो है ना अभी 39,000 है, क्योंकि मैंने 1000 का कस्टमर रफा दफा किया। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट किधर है? ये तो नुकसान हो गया मेरा। हाँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिनको हम बन्नो बोलते हैं या बानो बोलते हैं। ओके, उसमें आई रिपीट अगेन, आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इट ताकि आपका ध्यान वहाँ पर जाए, वरना आपका ध्यान इट्स रोमिंग इन द एंटायर स्क्रीन। +1000 स्पेसिफिकली इन दैट फॉर्मूला, और कहाँ पे उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। अभी तुमने डेटर्स का शुद्धिकरण कर लिया, मतलब जो जो बुरे डेटर्स थे उसको निकाल दिया। हाँ पर ना भी, क्योंकि देखो आगे क्या बोला, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नाउ ये क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट जस्ट अबाउ मी। क्या बोल रहे? नहीं अभी भी थोड़ा डाउट है। तो क्या ऊपर डाउट नहीं था? नहीं, ऊपर डाउट नहीं था, वो तो भाग गया, भगवान जाने उसका गांव किधर है। ओके, ऊपर वाला जो 1000 था वो डेफिनेटली भाग गया, बट अभी भी हमको 3% का डाउट है। ओके, अभी यूबीसी से 3% का ही कैसे डाउट है? 2 का क्यों नहीं है? 5 का क्यों नहीं है? 10 का क्यों नहीं है? एवरी बिजनेसमैन ओके हैज अ एक्सपीरियंस, अनुभव, सालों साल का अनुभव है उसको। वो बिजनेस, तुम जब पैदा नहीं हो गए ना, उसके पहले से वो बिजनेस कर रहा है। सो हिज एक्सपीरियंस, पीपल ओके इन big companies are paid for their experience. If you see many advertisements online, offline, they always say 7 years experience, 10 years experience. Why? Because an experience बंदे को पढ़ाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, तो बेसिकली बिजनेसमैन इज एक्सपीरियंस, उसको पता है मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरे ये बिजनेस के अंदर 2% के लोग तो भाग जाने वाले हैं। डाउट रहता ही है मेरे को उन लोगों पे। 3%, 5% डिपेंड करता है उसका। दिस बिजनेसमैन सेज 3% पे मेरे को अभी तक डाउट है, क्या ये मुझको मेरा पैसा नहीं देगी? हाँ, तो फॉर अ बिजनेसमैन व्हेन ही डाउट्स के पैसे नहीं आने वाले हैं, ही क्रिएट्स अ रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओके, तो रिजर्व का मतलब है एक घड़ा, एक पिगी बैंक, एक मटका, जिसमें वो 3% का पैसा रख देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कस्टमर जिस पे उसको डाउट है भाग जाते हैं, बिजनेसमैन उनके पीछे मैराथन नहीं लगाएगा। ही हैज़ टू टेक केयर, उसको बॉम्बे में ही रहना है, उसको दिल्ली में, उसको अपना ऑफिस जहाँ पर है, बिजनेस जहाँ पर है, उसको वहाँ पे रह के अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है। वो पुलिस कंप्लेन करेगा और बोलेगा चलो भाई देखते पुलिस अपना काम करती है कि नहीं, मैंने तो रिजर्व बना दिया था। हाँ, तो यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व। 3% का रिजर्व किधर है, किस पे? ये 39,000 पे, डाउट इन पे है। 39,000 पे आपको, ओके, सो दिस इज वे वी आर गोइंग टू राइट -3% न्यू आरडीडी। माइनस क्यों कर रहे हो? अरे मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओके आप ऐसा कोई बिजनेसमैन कभी बोलेगा मैंने कस्टमर से मांगा 10 रुपया, उसने मेरे को दिया 15 रुपया। वेरी रेयर, गलती से उसने 2 नोट तेरे को दे दिए रहेगी, गलती से। वो उसको घर पे जैसे ही मालूम पड़ेगा ना, वो कॉल मारेगा, वो 50 रुपए का रिक्शा भाड़ा भर के आएगा अपना एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए। कस्टमर्स डोंट पे मोर, कस्टमर्स कम ही देते हैं। ये आप कस्टमर हो तो बात अलग है, इफ यू आर अ बिजनेसमैन आपको पता रहेगा। हाँ, सो इसके लिए माइनस कि बाबा 3% पे हमको डाउट है। 3% कितना? 39,000। 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, दैट्स हाउ यू डू। हाउ मच डू यू गेट? 1170, एंड फिर ये आउटर कॉलम में आ जाएगा।
37,830. So I hope that is understood by you. This is first effect, first. Okay, so don't be happy. Second effect भी देना है इसका. Okay, फॉर्मूला तो है ही हमारा, फॉर्मूला में लिख लेते हैं. So I hope you can see that. Plus 1170 and the answer outside is 1570. How do you do that? Bad debt plus additional bad debt plus new RDD minus. तो जो प्लस प्लस है वो प्लस करो, जो माइनस है वो माइनस करो, and only after that when you put the correct answer outside, when you put the correct, not answer outside, correct answer outside, do you get marks. So this is the story of the formula of BANO, okay, and daters. ये लगभग हर सम में रिपीट होगी. नेक्स्ट, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग. जस्ट अबाउ में डेप्रीशिएट मतलब व्हाट, लैंड एंड बिल्डिंग घिस गया, उसका वैल्यू कम हो गया. कितना? 5%. फर्नीचर घिस गया, उसका वैल्यू कम हो गया. कितना? 10%. सो आई रिपीट माई सेल्फ, लैंड एंड बिल्डिंग किधर है? अबाउ में. सो डेप्रीसिएशन मीन्स रिडक्शन, तो डिक्रीज, माइनस करना पड़ेगा. सो आई होप द हाईलाइटेड पार्ट इज सीन. इन दैट वी विल डू डेप्रीसिएशन. 5% कितना आता है? यू हैव टू डू कैलकुलेशन. 37,800 मल्टीप्लाई बाय 5/100. सो वी गेट 1890. आउटर कॉलम 35, 9, 10. Remember to put the answer in the outer column. Remember to put the answer in the outer column. Otherwise, sir, मैंने इतना मेहनत किया, 5% ढूंढा, इनर कॉलम में लिखा, बट माय डियर द इनर कॉलम इज रफ वर्क. एग्जामिनर अनफॉर्चुनेटली इनर कॉलम में देख तो लेगा, शाबाशी देगा, मार्क्स नहीं देगा. सिमिलरली फर्नीचर में कितना डिप्रिसिएशन है? 10%. क्यों? अरे अगर आप इफ़ यू यूज़ अ चेयर, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, आप देख लो सोफ़ा को मे बी 1-2 साल बाद, ओके, एक तो नहीं उधर एक डिज़ाइन बन जाता है, आप जो बैठते रहते हो ना उसका डिज़ाइन बन जाता है, और उसका जो ऊपर लेदर का रहेगा तो वो लेदर घिस जाता है, कपड़े का रहेगा तो उसमें से धागे निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो डिप्रीशिएट हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है. 1725 एंड आउटर कॉलम 15,525. तो बिल्डिंग में हमने 5% किया क्योंकि कहाँ, फर्नीचर में हमने 10% किया क्योंकि कहाँ. ओके, हो गया? नहीं, एक ही बार हो गया. कैसे कैलकुलेट किया आपने? मैंने दिमाग लगाया. ओ, तो माइंड का काम है, बराबर है, घुटने का थोड़ी काम है. ओके, दया बहन के जैसे घुटने का थोड़ी काम है. ओके, दैट वाज द सीन दैट वी यूज्ड अ लिटिल टाइम बैक. सो दिमाग लगाया हमने. हाँ, तो दिमाग किधर है? देखो ना यहाँ पे 3 दिमाग. सो ऑन द डेबिट साइड दे we write it to depreciation. This is the style of writing it. This is the style. पहले land and building उसका depreciation लिख लो, then furniture उसका depreciation लिख लो, टोटल करके बाहर डाल दो. 3615 टोटल करके, करेक्ट टोटल करके बाहर डालना. ओके, राइट नाउ ऑल आवर एडजस्टमेंट्स आर डन. ओके, अब क्या करना है? देखो, पोस्टिंग हो गया, पहले मार्किंग किए, बाद में पोस्टिंग किए, बाद में एडजस्टमेंट्स किए, अभी लास्ट क्या करना है? टोटल करना पड़ेगा. कास्टिंग, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. चलो, लेट्स ट्राई दैट आउट ऑल्सो. सो कमिंग टू माई फर्स्ट अकाउंट. नाउ डू रिमेंबर, इफ यू सी डेबिट साइड पे आई हैव पुट अप अ टोटल. व्हाट इज दैट? दैट इज द डेबिट टोटल. रफ वर्क है वो, रफ वर्क. ओके, रफ राइटिंग, इट्स इन, आई होप इट कैन बी सीन. येलो इंक में मैंने लिखा है रफ. Why is it written? Because the credit is heavy. 1,18,000 and 58,000 comes to 1,76,000. तो डेबिट मुझे आपको दिखाना है कि कम है, क्रेडिट भारी है, तो वो दोनों साइड पे आएगा, क्योंकि भाई जो पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं सरकार तो उन्हीं की बनती है. हाँ, तो 1,76,000 माइनस 124,820. Gross profit 51,180 in this question. In another question it will be something else. 51,180. Okay, so the only part which is about 124,820, that's a rough number. It's to पेन में मत लिखना, पेंसिल में लिखोगे तो अच्छा रहेगा. ये ग्रॉस प्रॉफिट को पिकअप करो, अगले पेज पे लेके जाओ, मतलब अगले अकाउंट में.
which is profit and loss. So right above me, 51,180. And again, if you notice, I just put up there 17,215. It is the debit का rough total. Credit भारी है ना, credit 52,680 minus 17,215. Credit total minus debit total. Net profit 35,465. Net profit क्या होता है? लास्ट का प्रॉफिट, मालिक के जेब में ये जाएगा, यहाँ पे मालकिन के जेब में जाएगा। शिल्पा, कैटरीना, आपको जो बोलना है, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, कितना कितना जाएगा? हमने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तो बंटवारा किधर दिया ही नहीं था। बराबर है, नहीं दिया था, तो क्या करने का? एक काम करो, दोनों को बोलो WWF करो, ओके, फाइट करो, कैट फाइट। नहीं, ऐसा नहीं बोलने का, ओके। बराबर से आप सोच के हिसाब करो। तो क्या है वो? हाफ ऑफ कर लो। सो 35,465 का हाफ ऑफ कर लो, ओके। बट व्हेन आई डू दैट into half divide by 2, then I get decimal answer. What decimal answer do I get? So I repeat, I'm just giving you rough work. 17,732.5, and even for the next one 17,732.5. तो सर डेसिमल में लिखिएगा तो चलेगी? नो, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सो शिल्पा का 17,732.5 will become 17,733. That 0.5, 2.5 has become 3. Units place has been increased by 1. But you can't do the same for Katrina. क्यों? क्योंकि अगर उसका भी हम लोग ये राउंड ऑफ का फंडा करेंगे तो वो भी हो जाएगा 17,733, बट देन 1 रुपया बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। डोंट से सर दे दो ना सर, ओके, गुस्सा हो जाएगी वो। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, 35,465 का बंटवारा होना चाहिए, उसमें 1 रुपया कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। सो आई रिपीट, वी हैड टू राउंड ऑफ फॉर बोथ, बट इफ वी राउंड ऑफ फॉर बोथ 733 दोनों को करे, 1 रुपी इंक्रीजेस, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फॉर कैटरीना वी डोंट डू द राउंड ऑफ बिजनेस। इसमें कोई मैथ्स का फंडा नहीं है, मैथ्स का फंडा हमने शिल्पा फर्स्ट पार्टनर को यूज़ किया। 17,732, सो द टोटल कम्स टू 35,465। एक पार्टनर को थोड़ा बलिदान करना पड़ता है, ओके। सो दैट इज डेसिमल था, इसके लिए मैंने ये डेसिमल दिखाए, अदरवाइज वो रफ वर्क है, वो दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यू डोंट हैव टू शो। लेट्स टेक दिस नेट प्रॉफिट जो राउंड ऑफ हो चुका है एंड गो टू आवर लास्ट पेज। क्रेडिट में लिख लो बाय नेट प्रॉफिट brought down, okay, not carried down, unfortunately, brought down, B/D 62,733 for शिल्पा क्रेडिट टोटल। डेबिट में माइनस करेंगे 2,000, 6733। व्हाट अबाउट कैटरीना? 62,732 minus the drawings 59,732. Okay, I repeat myself, as far as the net profit is concerned, is net profit brought down, not carried down. वो P&L अकाउंट में carried down था, slight error. ये क्या है जो अभी हमको आंसर आया है? ये कैपिटल है, इसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। किधर जाता है ये लाइबिलिटी साइड में जाता है, ओके, क्योंकि कैपिटल मालिक का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। सो दोनों का नाम लिख लो, दोनों का अमाउंट लिख लो, टोटल डाल दो। दैट इज़ द प्रेजेंटेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंड देन ऐसा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रार्थना का काम पहले हो चुका है। अगर आपने मेहनत किया है, ओके, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड प्लान, then definitely both these sides will come the same, and this is what is the answer, 187,265. Okay, you can always pause if I've gone a little bit faster, either rewind or pause the video, write everything and copy the last things. We did multiple things new today, and I obviously see the lecture has become quite lengthy, but it will not always be so, because I don't have to always tell you closing stock story, outstanding story, prepaid story, depreciation story. I had to do that today because it was the first time that we were doing a first question from the government textbook. Okay, in future we will be doing multiple questions from the government textbook. The question number is generally always written
in the title of the lecture. Fine. I hope everything is done with you, and it's time for me to move away from here and meet you in the next lecture. And do remember, the PDFs will be shared at the end of the entire chapter via the Telegram app. So you are supposed to download the Telegram app and get connected and be a member of the Steven Sir Makes It Easy group on that particular platform. Okay. बाकी अगर आपको ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कर देना. वी आर ट्राइंग अ बेस्ट दैट एवरी एडजस्टमेंट हैज़ अ सेपरेट एक्सप्लेनेशन एंड काइंड ऑफ एक इंस्टाग्राम रील और स्टोरी छोटा सा, सो दैट अगर आपको कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट चाहिए यू कैन ऑलवेज सर्च दैट, इट विल ऑलवेज पॉप अप ऑन योर स्क्रीन. ओके. हाँ, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिमाइंडर, सब्सक्राइब कर लेना. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ of the channel and accordingly the reach of the channel to as many students as is possible. Okay. This is it for me. Share the videos on this particular platform via WhatsApp, Facebook, Instagram. अगर लिंक शेयर होता है तो डेफिनेटली कोशिश कर लेना. ओके. मैं आपको जल्दी मिलूँगा. अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया ये लेक्चर के बारे में, नॉर्मली तो मैं रिपीट करूँगा बट यू कैन ऑलवेज पुट इट अप इन द कमेंट बॉक्स. तो होता क्या है, द वीडियो इज़ अप एंड द कमेंट्स आर डाउन. सो आई नो कि ये लेक्चर के बारे में स्टूडेंट को ये डाउट था एंड अकॉर्डिंगली मैं वो आगे क्लैरिफाई कर सकता हूँ, नॉट जस्ट फॉर वन स्टूडेंट बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु एवर आर वॉचिंग आवर लेक्चर्स. टिल द टाइम वी मीट अगेन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सबका ख्याल रखना. ओके. फैमिली इज़ द मोस्ट प्रेशियस पीपल that will always stand by you. हाँ, कभी कभी तूतू में होता है बट अपनों के साथ में ही तूतू में होता है. At the end of the day everything settles down. I will meet you very very soon. Till that time, take care of yourself. Good day to all of you. God bless. Bye.